So today uh, we'll be starting from start, okay, Piyush, because we have a lot of people again. Since Piyush was there last time, he'll be having a revision again. But for all you other guys, we'll just go through quickly the introduction and other part. So I'll request everyone to have your pen and pencil in hand so that you can just go through your textbook so that you can scribble whatever I'm writing, and this way you'll be able to get acquainted with the textbook. Okay, guys? Someone's mic is on and it is getting disturbed. I request you all to mute, please. Okay. Okay, perfect. So, guys, when we look at our environment outside, what do you see? We see a lot of elements. You drink milk in morning, you brush your teeth. So, these are some of the things that we come across in our day-to-day life, right? We drink juice, we eat, then we have a natural cycle of breathing. So, what are we doing? We are playing with the elements around us, okay? So, the air we are breathing is a gas. It is a gas state of matter. Then we are drinking water, which is so essential to human beings. So it is again what? It is one kind of liquid. Then you have a solid book in your hand. You can turn its pages. So it is a solid. So these are the basic three types of matter that we come across in our day-to-day life. So this is what your first line in this chapter is trying to say here. What are types of matter? So I hope you guys are aware of the basic types which I just introduced to you. That is solid, liquid, and gas. Perfect, guys. Then we see there are all these types which are there. These are somehow what? These are the basic elements that are present. So everything is composed of some kind of thing that is very small, tiniest, which we can't see with our naked eyes. And this is what we trying to see here in chemistry. This is a branch of science which is basically chemistry, right? What chemistry does, of how chemistry works, is with elements. If you don't know what are these elements, you don't really understand what we're talking about in chemistry, okay? So we need to go properly through this thing, which is element in chemistry. And today we will be seeing how these elements were, over the time period of like since 2 centuries ago, like it is hundreds of years before, how the things were discovered in our nature, how the scientists work, and how the classification is as we see it today. Okay, so here, if you can see, you have a glass of water that you drink. So it is what you'll say कि मैम मैं स्टील के ग्लास में पानी पीता हूँ, मैं सिरेमिक के ग्लास में दूध पीता हूँ, right? So what are these all? These are all somewhere chemical compounds that can be easily fetched across our, बोलते हैं ना, धरती में से आते हैं, या फिर some are synthesized also. Synthesize मतलब आप लैब में उसका synthesis करते हो. So all these elements basically form some or other part that are really, there in our environment. They exist and we're trying to find it out. So what happened, as I'll scroll down the book, you'll get to know that around 1800. So you can see the year here they are talking about is 1800. So imagine we are in 2021 now. So around that year, there were only 30 elements known, and today we have approximately 118 elements. And you must have heard, right, of Nobel Prizes. You must have heard about a lot of other important discoveries that are happening. And then you wonder, like, why? So because every day a new thing is being discovered around us, and this is how the transition is happening, and this is what particularly this chapter seems to address. Okay? Someone's muted. Vaibhav. Okay, works.
So we'll be seeing how the classification is happening, which I was talking about till now, like the glass of water or the ceramic glass that you drink milk in, or how the air we breathe, how the classification happened for all this is what basics we'll be studying in this chapter. So I'll just go through a timeline. Here you will be able to see first classification that we come across is Dauberniers triad. Okay. Now, what is this Dauberniers triad? Always remember, everything in chemistry has a no has the meaning. Okay. When you are trying to read something, try to find out what it means. So here, Daubernier something stands for a scientist name. It is not something very rocket science or that you will have to fear. Try to read things which are given in your textbook. Okay. So here, Daubernier is a scientist, and triads. Triad stands for a word which is try plus age. So what try means, if you guys have like we say मूल शब्द बोलते हैं इसको, like root word through which we are able to find out what the word means is what try. So try, if you try to decode it, it means three, right? So something like try it. So this particular scientist Daubernier tried to classify his elements whichever there at that time into three parts, is something that we'll be able to find out using this particular heading itself. So in detail now what we'll see is, now if you know what is atomic mass, I just explain you what is atomic mass. So when you're talking about any of an element, okay, oxygen, or if you're talking about nitrogen, the urea, that urea we're talking about. So urea में भी element है. So we have urea में क्या होता है? Nitrogen होता है, oxygen होता है. सो एटॉमिक मास क्या होता है ना, वो पर्टिकुलर एलिमेंट का एक आइडेंटिटी है. जैसे आपका भी खुद का मास है, राइट? वी से वी हैव नेम्स, वैसे ही ये एलिमेंट्स के नाम है. वी हैव डिफरेंट वेट्स, तो वैसे ही ये एलिमेंट्स के वेट है, उनके मास. सो अपन क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक एटॉमिक क्यों बोले, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड दीज आर स्मॉल टाइनी एलिमेंट्स. सो ये एटम्स है. So we are trying to classify, we are trying to record these elements into their classification of atoms. Classification मतलब क्या? उसका अलग अलग क्या प्रॉपर्टी है, लाइक उसके हिसाब से हम उसको डिफरेंट करते हैं. जैसे आप अपने भाई से अलग है, इवन इफ यू हैव सेम पेरेंट्स, यू डिफर फ्रॉम योर सिबलिंग्स. व्हाई? बिकॉज आपका अपना एक ट्रेट है. तो वैसे ही ये एलिमेंट्स है, इसमें भी आइसोटोप्स होते हैं, इसमें भी अलग अलग ट्रेड्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें से एक एटॉमिक मास है जो मैं बोल रही थी अभी, एटॉमिक मास. एंड ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को हमने किया है क्लासिफाई किस तरीके से? एटॉमिक मास से. आप अपने बुक में, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपने बुक में ये लिखो कहीं तो, ताकि यू व्हेन यू रीड नेक्स्ट टाइम, जब आप अगली बार पढ़ेंगे, आपको समझेगा कि इसको क्या. इतना पैरा पढ़ने से अच्छा कि आप अपने कीवर्ड्स में शॉर्ट में साइड में लिखा है तो आप उसको पढ़ पाओगे. ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा होगा कि आपको समझेगा कि आपने क्या पढ़ा है व्हेन यू गिव योर एग्जाम और व्हेन यू आर रिवाइजिंग अगेन दिस चैप्टर. क्योंकि ये फिर बहुत वोलाटाइल हो जाता है, सब सकते कि आप भूल जाए इस चीज को. ओके, राइट. सो एलिमेंट्स है, एंड एलिमेंट्स को हम एटॉमिक मास के हिसाब से कर रहे हैं. एंड इसमें हम ये कर रहे हैं कि ट्राइड. अभी ट्राइड क्या है तो मैंने अभी बताया, थ्री इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम ट्राई and eights. अभी triads जो word है, it is because we are classifying these elements into atomic masses. And now the next term that I'll introduce you to is average. Average पता है आपको? Average या फिर mean जिसको बोलते हैं. So basically mean दो इसका होता है, but is in terms of average, it happens that it comes in terms of two. So average basically क्या होता है? सपोज आपके पास 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, राइट? एंड उस मार्क्स में, वन सेकंड, आई म्यूट दिस पर्सन. सो एवरेज में क्या होता है, आपके पास सपोज 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो आप उनको कैसे एवरेज निकालते हो? आप सबका एडिशन करते हो मार्क्स का एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितने हैं, 5, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं हम, एवरेज ऑफ 2 एलिमेंट्स निकाल रहे हैं. ठीक है, एवरेज ऑफ जब 2 एलिमेंट्स निकालते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, 2 एटॉमिक मास को लेते हैं. सपोज मैं यहाँ पे x समझ रही हूँ और y समझ रही हूँ, एंड बिकॉज 2 ही है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करते हैं.
इजी मैथ्स, ठीक है। सो बेसिकली डॉबरनियर क्या बोलता है, अभी जो ये साइंटिस्ट है ये ऐसा बोलता है कि he has arranged, he is trying to arrange the elements in increasing order of atomic mass, ठीक है, increasing order of atomic mass, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अब अपने बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। and that the atomic mass of middle element is approximately equal to the mean मतलब ये पर्टिकुलर चीज जो मैंने जस्ट देखी अभी, एवरेज। परफेक्ट, आई होप यहाँ तक सबको समझा है, किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछो। अभी हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, लाइक अभी तक थियोरेटिकली बताया, अभी एग्जाम्पल से देखो यहाँ पे ये टेबल में क्या दिया है। Li stands for lithium, Na stands for sodium। सॉल्ट खाते हो अपने घर पे, सॉल्ट इसने सॉल्ट जो जान डालता है अपने खाने में तो वो क्या होता है, NaCl। सिंपल केमिस्ट्री, आई होप ये आपको पता रहेगा, NaCl। तो अभी NaCl क्या है, अपन इसका साइंटिफिक नेम क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो है सोडियम, ये अपन Na है। सो जस्ट टू रिलेट, लाइक ये बहुत आउट ऑफ साइंस से नहीं आया है, ये ऐसा ही है, अपन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। पीयूष योर माइक इज ऑन, अच्छा 1 सेकंड, ओके। सो ये जो Na है ये है, एंड K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज है जो आपको अपने आप, लाइक व्हेन यू विल गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप अपने आप इसके क्रॉस आएंगे एंड यू विल बी क्वाइट फेमिलियर विद द टाइम, ओके। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज लिथियम, इसका वेट दिया है 6.9, सोडियम का वेट दिया है 23 एंड पोटेशियम का वेट दिया है 39। ये सब कैसे आया अभी पूछोगे आप, तो ये सब एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, ठीक है। आप किसी एलिमेंट को लेते हो, उसका 1 मोल, इफ यू रिमेम्बर 1 मोल जो रहता है अपना एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल का अपन वेट निकालते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी आप यहाँ पे क्या देखोगे, लिथियम का वेट और पोटेशियम का वेट ऐड किया तो व्हाट वी गेट, एंड डिवाइड किया, एवरेज निकाला, बेसिकली मीन किया जो पे दिया है, यू गेट 23। एंड 23 की तो किसका एटॉमिक मास है, तो सोडियम का एटॉमिक मास है। सो हाउ लकी ही वाज टू, लाइक यू नो, आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर ट्रेड। एंड इसीलिए उसने क्या बोला कि जो तीन है, तीन ट्राइड जो बन रहे हैं लिथियम सोडियम और पोटेशियम के, इसको उसने क्या नाम दिया, डॉबरनियर्स ट्राइड, ओके। ऐसा एक और एग्जांपल दिया है कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का। सिमिलरली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगेन क्लोरीन कहाँ से आता है, आपने अगर कभी स्विमिंग पूल में गए रहेंगे, so you must have come across the word, क्लोरीन का पानी है, मम्मी बोलती है लाइक अप्लाई सनस्क्रीन और कुछ प्रोटेक्शन के लिए, तो ये क्लोरीन है। सो ऑल दीज एलिमेंट्स, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि ऑल दीज एलिमेंट्स जो आप देखते हो अपने आजू बाजू में, ये सब अपने एटॉमिक पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, ओके। So again, if you see this for same trend is there, 40 है कैल्शियम का एंड बेरिलियम है 137, स्ट्रोंशियम का वेट इन दोनों का एवरेज निकलता है। एंड अभी ये जो थियोरी है इसका क्या, अभी ये जो थियोरी है सेम विथ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो समझ गया रहेगा, अभी ये सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन था। इसके आगे जब आप देखोगे तो क्या है, एक लाइन दिया है, देखो, हाउएवर ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड। सो ड्रॉबैक जिसको हम बोलते हैं, ये ड्रॉबैक है। आपको कभी कोई पूछेगा कि आपके ये थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, तो ये ड्रॉबैक है। सो द ड्रॉबैक इज दैट ऑल द एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड, एंड इसीलिए वी कम अक्रॉस अ न्यू थ्योरी। अभी आप सोचो ये कितना, लाइक इट इज सो ओल्ड, इट इज 1870s गाइस, 1817 में निकला था, एंड देन दे वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन न्यू एलिमेंट्स, तभी we were trying to identify the new elements around us. So like this was only the 3 major, बोलते ना, ये 3 ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, लर्न करने हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये आपका डॉबरनियस ट्राइड हो गया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए मेरे को, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने अभी जस्ट बताया ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या था अपना, डॉबरनियस ट्राइड का, कि all elements were not able to fit in that particular order which he was suggesting. So now came Newland.
अभी ये जो हेडिंग है, अगेन इफ यू विल सी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो अगेन इसको भी डिकोड करते हैं हम। न्यूलैंड, न्यूलैंड क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, जॉन न्यूलैंड, ठीक है। एंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, अगेन जैसे अपन ने ट्राइड्स को डिफरेंशिएट करके एक अलग सीरीज बनाया, तो ऑक्टेव्स क्या है? इज दिस ऑक्टेव्स। सो अगर इसको हम अच्छे से देखेंगे तो ऑक्ट क्या वर्ड है? लाइक मोनो होता है वन के लिए, ट्राई था अपने थ्री के लिए, डाई होता है टू के लिए, वैसे ही ऑक्ट क्या होता है गाइस? इफ यू कैन रिलेट इट, इट इज एट, राइट। सो इधर कुछ तो है जो रिलेट हो रहा है न्यूलैंड जो अपने साइंटिस्ट है और इनके ऑक्टेव से, एंड इधर एक वर्ड है लॉ। सो इसने क्या किया, लाइक दिस गाय साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड, ही नाउ वाज ट्राइंग इट इन अ डिफरेंट वे। एंड क्या वे में ही अप्लाइड हिज knowledge of all the atomic masses। अगेन एटॉमिक मासेस यहाँ पे फिर से सेम रोल प्ले करता है, बहुत जरूरी रोल प्ले करता है, ठीक है। सो ही वॉज ट्राइंग टू अरेंज देम अगेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इधर मार्क कर लो द लाइन विच इज देयर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स याद रखो, ठीक है। And what he was doing is that every eighth element was similar to the first element। जैसे कि अभी अपन अभी अभी गिनेंगे, like this is such a fun task if you do। Start from hydrogen and you will come across the eighth element। So if you start here, you'll get across 1 2 3 4 5 6 7 8। So you come across sodium। So what he is trying to say is that every eighth element has same property। So basically he is saying that hydrogen और sodium का property एकदम डिट्टो है, सेम टू सेम है। जैसे बोलते हैं ना सेम पिंच, वैसे हुआ यहाँ पे कि सेम पिंच कैसे हो गया। उसने क्या बोला कि ये तरीका जो है इससे अपने एक लॉ बना सकते हैं जो कि वेरी सिमिलर टू अपने म्यूजिकल नोट्स का है। कभी सारे गामा पधा निसा सुना ही रहेगा, अपना इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक में भी होता है। तो यही दिया है, जो डू यू नो है बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, लाइक जस्ट गो थ्रू इट वंस। सो क्या है ये? एवरी इसमें इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। सी हाउ ग्रेट आवर कल्चर इज, लाइक जो अपन पढ़ते हैं, लाइक जो अपन सुनते हैं म्यूजिक सिस्टम में, उसके पीछे भी एक फ्रीक्वेंसी रहती है, उसके नोट्स में भी एक मीनिंग रहता है। तो बेसिकली वो क्या बोलते हैं, सारे गामा पधा निसा में सा और नी दोनों का भी फ्रीक्वेंसी ना सेम है, ऐसे। तो इसीलिए इधर भी क्या हो रहा है, इनका प्रॉपर्टीज सेम है, उनका फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेम है। सो इसीलिए इसने क्या बोला, म्यूजिकल नोट्स, तो इसलिए उसका एव आया। तो यहाँ पे ऑक्ट एव्स था, उधर ट्राई एड था, बिकॉज इट वॉज अ सीरीज ऑफ एवरेज, हियर इट वाज अ सीरीज ऑफ म्यूजिकल नोट्स से कोरिलेट किया गया। सो इसीलिए वी केम अक्रॉस दिस वर्ड ऑक्टेव। एंड अगर आप कभी एग्जाम में लिख रहे हैं कोई क्वेश्चन and if you're getting blank, so never get disturbed or never give समझे ना, बहुत स्ट्रेस नहीं लेने का, थोड़ा वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके सोचने का, like what it means, what the thing is trying to explain to you। Okay, so if you see here Newland's law of octave, right? So Newland is a scientist। So लिखने का उधर कि साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया। एंड ऑक्टेव क्या है? तो ऑक्टेव मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जो फर्स्ट एंड एट एलिमेंट है वो डिट्टो आया। डिट्टो आया मतलब सेम टू सेम आया। सेम टू सेम क्या आया? उसके प्रॉपर्टीज सेम टू सेम आए। तो यहाँ से एक नया उन्होंने लॉ बनाया। सो ब्यूटिफुली सी द साइंस हैज डेवलप। अपन जो बोलते हैं कि आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, आई वांट टू बिकम अ न्यू साइंटिस्ट और रिसर्चर, तो ये सब ऐसे ही आते हैं। लाइक यू ट्राई टू फाइंड आउट न्यू न्यू थिंग्स अराउंड यू, यू ट्राई टू डू रिसर्च। सर्च कर रहे हैं किस चीज का? रिसर्च कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है अपने अराउंड, उसका हम नया तरीका निकाल रहे हैं। तो इसका बैक टू दिस, सो हाइड्रोजन एंड सोडियम एक है सेम। अगर हम देखेंगे मैग्नीशियम से, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग यू विल कम अक्रॉस बेरिलियम से। अगर स्टार्ट करेंगे काउंटिंग से, यू विल कम अक्रॉस मैग्नीशियम। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल हियर। अगेन ऐसा क्लोरीन का भी एक एग्जांपल है, व्हेन बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में। सो ये तीन जो है अपने मेजर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपको याद रखने का जरूरी है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर लो, ऐसा स्क्रिबल करके रखो, सो दैट यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड। मतलब इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, विल एटलीस्ट रिमेम्बर फ्यू थिंग्स।
ओके, ये अपन ने अभी तक कवर किया दो चीजें, क्या, डॉबर्नियस ट्राइड्स, एंड सेकंड थिंग व्हाट वी डिड वाज न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। अभी न्यूलैंड ऑक्टेव में जिसमें मैंने पहले अभी वर्ड यूज किया था ड्रॉबैक, वैसे ही न्यूलैंड ऑक्टेव के भी ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक थे कि ये हर एलिमेंट को अप्लाई कर तो रहा था बट सिर्फ कैल्शियम तक के। सो जो अपना पूरा पीरियोडिक टेबल था उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हुए थे, अगेन ये जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अलग है, एंड ये जो टेबल थे इसमें जो एलिमेंट्स है उसका काउंट अलग है। there are two different counts in that are different counts for every element table that is going to be uh, found out eventually. So इधर क्या हुआ, ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग नंबर्स थे, एंड यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्योंकि कैल्शियम तक ही चल पा रहा था उसका सीरीज ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद इट वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, और वो फिर बोलते ना वो सीक्वेंस सारे गमा पधा निशा के सीक्वेंस में वो फिट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से इसके बाद क्या करे, सो दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशंस हियर। सो पूरे एलिमेंट्स अकोमोडेट नहीं हो रहे थे इसमें, इसीलिए वी केम अक्रॉस दिस न्यू थिंग विच इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये ड्रॉबैक इधर से ड्रॉबैक करके लिख दो, सो दैट वेन एवर नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे सो यू रिमेम्बर दैट दिस पैरा हैज अ ड्रॉबैक, एंड इफ यू वांट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि कैल्शियम के बाद it is not applicable above calcium, and if you read this you'll easily able to try to make them जैसे मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया अभी, वैसे आप लिखते वक्त भी यही चीजों को अंडरस्टैंड करके लिखना है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू हेलो। अंडरस्टैंड थिंग्स। Yes, any doubt? Okay. If no one spoke, then we'll continue. Mendeleev. Again, जो मैंने अभी कहा, let's try to decode this particular thing. Mendeleev's periodic table. Mendeleev again was a different scientist. Now this scientist, what he was doing, Dmitry Mendeleev, इसका बहुत बड़ा contribution है क्योंकि this was the first scientist to properly develop our periodic table. He gave a real insight into how a periodic table should look. And at that time, when approximately 63 elements were discovered, he was the guy who transformed the periodic table again in the properties which were very similar. अभी तक तो हम सारे गमा पधा निसा या फिर बोलते हैं ना एवरेज देख रहे थे, but now came the real twist. Real twist मतलब क्या? Now we came across uh, two new two new keywords I'm introducing here: physical properties and chemical properties. आप अपने बुक में इधर ही पेज के नीचे स्क्रिबल करके लिख सकते हैं, सो दैट यू कैन कम अक्रॉस दिस टू प्रॉपर्टीज, जो ये व्हेन यू आर राइटिंग इन एग्जाम यू नो कि मेरे को क्या कीवर्ड्स से ये आंसर लिखना है। इफ यू कम अक्रॉस एनी क्वेश्चन की डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और हाउ इट वाज फॉर्म, तो ड्रॉबैक्स से यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये एक कीवर्ड्स है। सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही वाज एबल टू क्लासिफाई, एंड दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बोलते ना लाइक उस टाइम में बहुत बड़ी चीज थी, बिकॉज up till now they were just trying to they were trying to identify, but now this person was able to classify. He properly classified the things, and therefore this arrangement was in very much going in hand with the formulae, with the properties of hydrides or oxides, उनके melting point, boiling point. Then we have density. Density सबको पता है, density मतलब क्या? उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है, अगर आपको बताए तो, राइट। तो उसका क्या क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थे, वो कैसे इंटरवल, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे थे, ये मेंडलीव सर जो है, मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव सर, दिस पर्सन वाज एबल टू प्रॉपर्ली क्लासिफाई देम। ओके, सो ये उसका फर्स्ट टेबल है जो है उन्होंने जो बनाया है, on the basis of periodic function of their atomic masses. So I'll just, this line particularly is very important. The properties of elements are periodic function of their atomic masses. Periodic function मतलब क्या? कोई particular interval के बाद उसका फिर से आना, ठीक है? कोई particular interval के बाद, like if something is repeating itself
over and over again after some time is something which is periodically happening. So properties of elements here, properties of elements are getting periodically repeated as a function of atomic masses. So this was beautifully put. This is beautifully written. If you see here, this line, please identify, like please underline, and this particular line will help you to, decode this table now. If you see this table, so you will see here on left hand side, we have, this is a simple table, right? This is how we go down the series. We have here 8 groups. Now see, the classification he did was of 8 groups. And how must have he come across this number of 8? Because us time pe this table will form the foundation. बोलते हैं ना, जिसकी नींव है ये. This is the foundation of a modern periodic table. ठीक है. सो अभी देखो आप, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सब के नीचे आपको एक ऑक्साइड्स के फॉर्मूले दिए है. ठीक है, ये डिकोड करो सब, क्या है ये फॉर्मूले. एंड 1 सेकंड, या गुड टू गो. या सो नाउ इफ यू सी देयर आर हाइड्रोजन के भी फॉर्मूले हैं. सो ये क्या फॉर्मूले बता रहे जो मैंने अभी जस्ट बोला आपको कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हैं. सो बेसिकली इफ यू सी हियर व्हाट वी सी इज कि जो ऑक्सीजन के हैं फॉर्मूले सब अलग अलग है. ठीक है, यहाँ पे R2O है, RO है, R2O3 है, राइट. So why is it that every time there is some different formula coming across? Because there are the properties of this particular group down the series, okay, down the series which are same. तो अभी आपको समझ रहा है, आई होप आई एम एबल टू डिकोड दिस वर्ड कि पीरियोडिकली जो सेम हो रहा है वो क्यों हो रहा है. सो बेसिकली RO है, तो ये जो भी एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स है ये पूरे RO फॉर्म करते हैं. इफ R क्या है, कोई भी इस एलिमेंट का कोई भी वर्ड उठाओगे उसको ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करोगे तो आपको एक ऑक्साइड मिलेगा जो ये पर्टिकुलर फॉर्म में बनता है, या फिर वो पर्टिकुलर फॉर्म में हाइड्रोजन मिलेगा. So this is how you basically classify things ऐसे. And if you see here, careful observation, 1, 7, 9.4, 11, 12, ये क्या हो रहा है? Anyone? ये क्या हो रहा है? This is so aptly put in increasing atomic mass. So if you see, this table is so depth, it has so depth, it is so deep that we are able to identify so many elements which are there that time जितने identify हुए थे. So उनमें उसने atomic mass के increasing order में भी लिखा, and उसको at the same time he was able to classify them in form of physical and chemical properties of oxides or hydrides. अभी आप बोलोगे कि डेंसिटी कहाँ पे गया मैम, या फिर बाकी सब कहाँ पे गया, तो ये भी उसका ही पार्ट बनता है. एंड इट विल बी यूजफुल. और बोलते हैं ना, ये सब पार्ट्स की वजह से we'll again come across a thing which is called drawback. So अभी ड्रॉबैक क्या है इसका वो हम देखेंगे. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे उन्होंने एक साथ में एक जगह पे they have trying to fit in group 8 there are a lot of elements that are put in. Again here in this particular range, if you see, there are, this is vacant, right? Again, few places are vacant. Here something is vacant. Here there's question mark. If you see, there is some kind of here if you see there is some kind of element is missing. Here you have not written any element. If you will see carefully, there एक question mark है, ये पूरा dash dash है. So केयरफुल ऑब्जर्वेशन से हमको समझता है कि इसमें कुछ तो मिसिंग है. और ये एक साथ इतने सारे एलिमेंट्स कैसे आ गए यहाँ पे? आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो सब सिंपल सिंपल एलिमेंट्स थे, यहाँ पे तो सब क्लस्टर कर दिया. तो ये ही है जो बेसिकली फॉर्म करते हैं अपने लिमिटेशन. तो लिमिटेशन आप देखोगे इसके, तो पहला लिमिटेशन ये है कि सारे एक साथ क्लस्टर किए, मतलब कुछ तो मिसिंग है. अब हम क्या मिसिंग है यहाँ पे इन एलिमेंट्स को नेम नहीं किया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, ये सब पूरा जगह पे डैश डैश है. सो व्हाट मेंडलीव वाज सजेस्टिंग एट दैट टाइम
कि there will be few elements और there will be few elements जो अभी तक के मैंने फॉर्म नहीं हुए, या फिर जो बोलते ना उस जमाने में वो टाइम पे वो चीजें तब तक इन्फॉर्म नहीं हुई थी सबको। और अभी अपने पास इंटरनेट है, अभी वी हैव एक्सेस टू जर्नल्स, वी हैव एक्सेस टू न्यूज़पेपर। कोई भी ट्वीट करता है तो विल गेट टू नो एनी इन्फॉर्मेशन लाइक फटाफट से। बट ड्यूरिंग दैट टाइम communication was slow, research was happening all across the globe, and things was little bit slow basically, बोलते ना। तो वो टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि तुरंत सब चीजें फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये बेसिकली ये अपन एक ट्रांजिशन के मोड में देख रहे हैं कि कैसे पहले ट्राइड्स आए, फिर कैसे वी केम अक्रॉस ऑक्टेव्स, एंड देन वी कैसे केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी देखा कि कुछ तो रिपीट हो रहा है एट सर्टन टाइम इंटरवल। तो क्या रिपीट हो रहा है, उसके केमिकल और फिजिकल फंक्शंस रिपीट हो रहे हैं। एंड क्यों रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि उनका एक कुछ तो प्रॉपर्टी है खुद का। सो ये फाइंड आउट करने के चक्कर में ही वाज ऑलरेडी ही वाज गेसिंग कि यहाँ पे जो एलिमेंट है कुछ तो मिसिंग है। ये जो है ये एक साथ डाले क्योंकि इनका एक अलग ही साथ में प्रॉपर्टी है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये एक साथ फिट हो रहे हैं। एंड वो बोला कि सपोज ये 40 है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, टिटेनियम का 48 है। इवन दो ही क्लासिफाइड हियर कि ये पर्टिकुलर हाइड्राइड बनाता है विद एन एलिमेंट 4 हाइड्रोजन या फिर 2 ऑक्सीजन, समथिंग वाज मिसिंग। इसे कोई तो एलिमेंट पक्का होगा जिसका वेट बोलते हैं ना 44 होगा। And he was absolutely correct, guys. Like with his this intuition जिसको बोलते हैं अपन, he intuited कि हाँ यहाँ पे कोई तो होगा जो ये पर्टिकुलर कॉलम में फिट नहीं हो रहा है। दिस पर्टिकुलर कॉलम, other than keeping it empty, he guessed a atomic mass। वही आप यहाँ पे बोलोगे तो you will say कि यहाँ पे तो एलिमेंट भी नहीं है ना नंबर है। सो अगेन ही वाज आल्सो राइट कि इधर भी कोई तो एलिमेंट होगा या फिर इधर भी कोई तो एटॉमिक मास होगा जिसकी वजह से देयर इज डिफरेंट और देयर इज स्पेस व्हिच इज लेफ्ट। एंड इसी का ही ये जो सब ड्रॉबैक्स है या फिर इसके जो मेरिट्स भी है एंड ड्रॉबैक्स भी है लेड टू आवर न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम देखते हैं अक्रॉस स्टडिंग इवन नाउ like till this date 2021 till this moment we are following this particular modern periodic table which is based on this particular periodic Mendeleev's periodic table। so इसका significance बहुत high है guys। so this particular table holds a real value which forms the foundation for a modern periodic table। इसको कोई डाउट है अभी तक के, कोई कोई प्रॉब्लम समझने में, कोई भी डाउट कुछ, please Not let me ma'am. know। Okay, good, someone is at least responding। so अगर आप पढ़ोगे इसके डिटेल में you will be getting to know more। try to read in between lines, okay everyone। एक बार मैं इसका मेरिट्स भी बता देती हूँ so that you will know कि ये पैरा में क्या लिखा है and you won't get blank sided कि ये क्या बोला मैम ने बता नहीं। ठीक है, साइंस इज प्रोग्रेसिव। देखो जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि उस टाइम पे नहीं था बट अभी है एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट थिंग्स। सो इसका मेरिट्स पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो ट्राई टू डू सम स्टार और स्क्रिबल समथिंग आउट देयर सो दैट ये इम्पोर्टेंट है। देयर आर 3 पॉइंट्स हियर एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे फर्स्ट मेरिट ये था कि एटॉमिक मास जो रिवाइज करके भी आए थे इसके बावजूद इट वाज प्रॉपर्ली फिटिंग इनटू दैट पीरियोडिक टेबल। एग्जांपल अभी जब दोगे कुछ भी लिखते वक्त पहले डिफाइन करने का वर्ड्स में, while writing first you define, ठीक है, सेकंड यू एक्सप्लेन डिटेल में कि व्हाट यू हैव डिफाइन। एंड एक्सप्लेन ऐसा नहीं कि रट्टा मार के जा रहे हो, एक्सप्लेन वो करो जो तुम्हें समझा है, जो मैं तब से आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंडली वर्ड्स लाइक मेक दिस बुक योर फ्रेंड, ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड, ट्राई टू बात करने का कोशिश करो इस बुक के साथ, जो मैं बार बार बोली हूँ कि ट्राई टू मेक बात करो उसके साथ, ट्राई टू डिकोड द वर्ड्स, ट्राई इट, ट्राई ट्राई कैसे आया तो कुछ तो ट्राई में था, तीन में था, तीन में कैसे आया तो मीन से आया। सो इवन इफ यू गेट ब्लैंक और स्टडी करते वक्त भी तुम्हें कुछ नहीं समझ तो ट्राई टू मेक की वर्ड्स सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा। बेसिकली मैं बता रही थी कि वर्ड में कैसे डिफाइन करते हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं एंड एग्जाम्पल्स।
ये बहुत जरूरी होता है एग्जाम्पल्स देना, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है, the examiner understands you are able, this particular child was able to understand the things, because otherwise क्या होता है, तुमने बहुत सारा ब्रह्मांड महाभारत लिख दिया, कोई देखता नहीं उसको, he'll always read your first line in the answer कैसा लिखा है and last line in the answer. He has to check millions of papers, lakhs of papers एक टाइम पे, तो वो लोग इतना कीवर्ड पर नहीं बैठेंगे. So you have to make sure you are writing 2 point, आप कुछ भी फालतू का नहीं लिख रहे हो, and you are writing what you have understood, that makes things easy for you yourself only. So first line कोई भी देखता है, last line देखता है, तो अगर आपका first line में definition काफी अच्छा है and आपने उसका end में example दिया है, so automatically एक बोलते हैं ना, it creates an image that this guy has understood what he wants to write or what he wants to explain to us. So always write what you want, like, कोई भी point, अभी ये point था एक, merits लिख रहे हो आपने, heading डाला merits of Mendeleev's periodic table. So when you are writing in points also, make sure कि आप उसको explain करो, example दे रहे हो, example भी याद करने पड़ेंगे, तो उसको भी ऐसे याद करो कि it will be recollected in your brain. ठीक है, तो ये मुझे एक बताना था कि कैसे बोर्ड में अप्रोच करना है किसी क्वेश्चन को. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग बैक टू आवर मेरिट्स. सो मेरिट ये था कि इवन आफ्टर रिविजन, यहाँ पे आप वर्ड लिख सकते हो, रिवाइज ऑफ एटॉमिक मास. सो ये अपना इतना भी आपने एक बार याद किया तो भी आई गेस आपको याद आना चाहिए कि क्या मुझे बोलना है. सो एटॉमिक मास का ऐसा हुआ कि बेरिलियम का पहले 14 था, उसको करेक्ट करके 9.4 किया, स्टिल इट वाज properly placed before boron and it was having a proper place in periodic table. दूसरा ये था कि जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊपर, vacant places छोड़े गए थे, and these vacant places were named as उनके पहले के जो एलिमेंट्स थे, तो तक बोरॉन था, एल्यूमिनियम था, तो उसको एका 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 बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ऐसे करके उनके अननोन एलिमेंट्स के नाम रखे गए, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग वाज इंडिकेटेड बाय एटॉमिक मास. एक बार मैंने अभी 44 नंबर पे एग्जांपल दिया है जस्ट, कि 44 तो लिखा है बट नाम कुछ नहीं दिया. सो ये चीज हुआ इसमें कि ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई. इसका वर्ड क्या था, आइडेंटिफाई. कोड वर्ड क्या होगा ये पॉइंट का, आइडेंटिफाई अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. तुम लोग भी लिखो, scribble somewhere guys, scribble, don't hesitate to scribble on your book, it's your own book. Try to write, जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा, like you guys like have to write as much as you can. एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. इफ यू सी, इफ यू कम अक्रॉस लेटर ऑन आल्सो, जब आप 10th के बाद भी पढ़ोगे, if you by chance take science, so you'll make sure that you'll see कि कैसे इक्का एल्यूमिनियम था एंड गैलियम था, तो उसका एक्चुअली बहुत इक्वल हो गया था, जो भी वो आइडेंटिफाई कर रहे थे एटॉमिक मास, जो प्रेडिक्ट किया था 44 का. तो ये सब चीजें बहुत प्रॉपरली फिट इन हो रही थी विद द प्रॉपर्टीज. तो ये सब अपने क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी एंड मेल्टिंग, और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है. So if you see, there was a repetition which was periodic in its nature around this table. So such a beautifully they have put in tabular form so that you can understand. ठीक है, next was that जो नोबल गैसेस है, अभी आपको बता रहेगा हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्ब स्पॉट हुआ था, इसमें क्या था, हीलियम था. तो दीज सम पर्टिकुलर फ्यू, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो अपने आउटस्टैंडिंग एलिमेंट्स है जिसको हम नोबल गैसेस बोलते थे, तो कोई प्लेस नहीं था. ठीक है, बट उसने एक जीरो ग्रुप करके बनाया था विदाउट डिस्टर्बिंग दिस दिस पर्टिकुलर टेबल जो अपन ने ऊपर देखा यहाँ पे, एंड ही पुट इट put these elements in a different zero element करके, जीरो ग्रुप करके. उधर अपना ग्रुप 1 से शुरू हुआ है, राइट, तो ये जीरो ग्रुप था, and he had beautifully put it that beautifully. One second, sorry, someone so he beautifully, without disturbing the original periodic table, he fit in this noble gases. These are noble gases, okay, इसको noble gases बोलते हैं. So ये उसके 3 particularly merits है. I hope ये सब पूरे क्लियर है सबको अभी तक का.
तो आप yes, जो कीवर्ड लिखा है वो कीवर्ड से याद रखेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू टू रिमेम्बर, बिकॉज आई नो इट्स अ ह्यूज पोर्शन आपको याद रखना है. सो स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड विद दीज थिंग्स विच आई हैव टॉट. एंड अभी भी जब स्टडी करोगे, अगली बार भी आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको कुछ अच्छा लगा, तो मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ इट. साइड में स्क्रिबल करने में देयर इज नथिंग हार्म, राइट? नाउ विल कमिंग टू ड्रॉबैक्स. एवरी थियोरी, अभी आपने एक नोटिस किया रहेगा, व्हेन आई वाज टॉकिंग, व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम ट्राइड्स वी केम टू ऑक्टेव्स, एक उसमें बोलते ना ड्रॉबैक था कि तब तक के उतने ही 3 ही ट्राइड निकाल पाया था वो. सो क्यों ऐसा? फिर ऑक्टेव आया, बट ऑक्टेव में भी सिर्फ कैल्शियम तक के जो एटॉमिक मासेस का सीक्वेंस था उसमें ही फिट हो रहा था. फिर से ड्रॉबैक आया. अभी इसमें जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है इसमें भी ड्रॉबैक है. एंड इस वजह से क्या होगा कि वी विल कम अक्रॉस आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो मेक श्योर कि अभी जो मैं ड्रॉबैक बोल रही हूँ ना, ये आप नोटिस करो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिट हो रहे हैं क्या. You know, like this is the way you should study, this is the way you should question things. Try to question things that you are studying. So the demerits of Mendeleev periodic table will be answered somewhere around in your modern periodic table that we study this year, like even like we study now in present century. Okay, so the without wasting time, so demerits of periodic table. So what he was trying to say is that few atomic mass जो discovered हुए थे वहाँ पे, कोबाल्ट एंड निकल जैसे फॉर एग्जांपल देना जरूरी है. So they were same, so इसमें fit नहीं हो रहे थे. This is your first drawback. Second drawback जैसे मैंने कहा, अभी जैसे we were talking about atomic mass कि आप सबके नाम है, right? बट आपके नाम में सबका अलग अलग वेट है. नाउ सेम नाम के भी लोग होते हैं, उसमें अलग अलग वेट रहते हैं. ठीक है, at times there are so many siddhis or so many names which are there are common names. तो उन नेम्स के अंडर भी डिफरेंट कैटेगरी होते हैं कि नहीं. हर एक बंदे का अपना प्रॉपर्टी है, उसका सरनेम तो अलग होगा, उसका आइडेंटिटी तो अलग है. सो दिस इज व्हाट आइसोटोप बेसिकली इज. अभी कभी भी आइसोटोप के अक्रॉस आओगे तो घबराने का नहीं है टर्म से. इज बेसिकली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज विद डिफरेंट एटॉमिक मास. सो सेम नाम है बंदे के, इतने बंदियां है, सब सेम नाम के हैं, बट उनके मासेस अलग है. सपोज समझ लो कि उनके वेट ही अलग कर दिया अपन ने ऐसे. सो ये एक चैलेंज था. तो इसका फर्स्ट अपन डाल सकते हैं. सेकंड इसका तो आप लोग कैसे याद रखोगे कि कुछ तो आइसोटोप में ड्रॉबैक था. थर्ड क्या है कि एक बार आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसमें प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहे थे बाकी के हेवी एलिमेंट्स. ही वाज ट्राइंग टू अरेंज, but then there was the rise in atomic mass which does not appear to be uniform. The way he had arranged the elements were not fitting in the atomic mass के increasing order में. ठीक है, so if we are predicting any new elements it was becoming difficult. So ये उसका ड्रॉबैक था कि क्या अगेन यही तो प्रॉब्लम है. एवरी टाइम न्यू एलिमेंट वर गेटिंग डिस्कवर्ड. ओके, इवन नाउ लाइक विल से मैम पीरियोडिक, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या अभी कुछ नए नोबेल प्राइजेस नहीं आ रहे? क्या अभी कोई नए डिस्कवरीज नहीं आ रहे हैं ना. बट क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग सिंक्रोनाइज्ड. वो अपने करंट टेबल में भी जगह है, उसमें सिंक हो रहे हैं, बेट उसमें ही दे एबल टू फिट इन. तो इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज स्टिल नाउ नॉट रिवाइज्ड. मतलब ना एक और थियोरी, एक और ड्रॉबैक क्यों नहीं आया. तो इसलिए अभी तक के अपन 3 थियोरी पढ़ने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थियोरी पे आके अपन स्टॉप हो रहे हैं. एंड ये हो गया तीन तीन डीमेरिट. एंड फोर्थ डीमेरिट हियर वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, अभी अपन ने ऑक्टेव में भी पढ़ा कि कैसे इट इज सिमिलर. सो ऐसा बोलते हैं कि इसका जो सिमिलैरिटी है ये हाइड्रोजन के साथ भी था. हाइड्रोजन मतलब ग्रुप 7. सो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग कि इसको कहाँ पे रखे, इसके प्रॉपर्टीज सेम हो गए थे. इट वाज गेटिंग प्रॉपर्ली इंक्लाइंड विद ग्रुप 1 आल्सो एंड ग्रुप 7 आल्सो. ग्रुप 7 हैलोजेंस है एंड ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स. सो these properties, इसके प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हुए इट वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू पोजीशन हाइड्रोजन. ठीक है, ये अपन अभी और डिटेल में पढ़ेंगे.
कि कैसे हाइड्रोजन को पोजीशन किया गया इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो ये कीवर्ड्स यहाँ पे लिख लो आप अपने, सो दैट यू विल रिमेम्बर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल टेबल दिया है 2.5 और 2.6। इसमें दिया है कि कैसे हाइड्रोजन और अल्कली सिमिलर है और हाइड्रोजन और हैलोजन सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, तो उसके ऑक्साइड्स देखो, उसके कंपाउंड फॉर्मेशन कैसा है, डिट्टो है, सेम टू सेम। सो इस वजह से वी कैन क्लासिफाई कि हाँ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रहे करके। ओके ये ये अपना Na अल्कली है ग्रुप 1 वाला, और ये अपने हैलोजेंस है ग्रुप 7 वाले। So both of these elements were having similar same to same बोलते ना physical properties. So ये अपने शॉर्ट में हो गए सारे demerits. कोई प्रॉब्लम है अभी तक के? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. Okay, there's no response, no doubts, I'll be moving forward. Now we'll be coming across this beautiful table, modern periodic law. Modern periodic law बोला गया है. See, so law क्या था? यहाँ पे एक bold statement में दिया है. Properties of elements are periodic function of atomic numbers. मास को चेंज करके नंबर लाया गया. ऊपर क्या था गाइस? ऊपर का पेज पलट के देखो. You guys can do this. Try to see, try to correlate every time you are learning. ऊपर क्या है? Properties of elements are periodic function of their atomic masses. यहाँ पे क्या किया? Atomic number. Yes, perfect. Try to scribble there. Try to make sure that you are able to कुछ तो scribble करो वहाँ पे, so that you know कि yes यहाँ पे एक difference है. Small words make big difference. Okay, so now what we are introducing to you here is atomic number. अभी तक atomic mass पता है मैंने. भी बोलोगे मैम एटॉमिक नंबर क्या है? तो मैंने कहा अभी एटॉमिक मास ही एक पर्सन का वेट है, वे एक पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट है. वैसे ही यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो उसका आइडेंटिटी है, उस एलिमेंट का आइडेंटिटी ही है. इन टर्म्स ऑफ chemical, in terms of, if we talk in terms of scientific chemical chemistry, it will be defined as positive charge on a nucleus. यहाँ पे एक लाइन है, if you are not able to be with me, ये लाइन को आप अंडरलाइन कर लो. एटॉमिक नंबर Z से डिफाइन होता है. ओके अगर अब की बार सबको एक कैपिटल Z दिखे कहीं पे, सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये एक एटॉमिक नंबर है. ठीक है. एंड एटॉमिक नंबर का जो चार्ज होता है, जो सॉरी क्या उसका प्रॉपर्टी होता है, वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस है. और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव है मतलब प्रोटॉन होता है, एंड नेगेटिव है मतलब, आई होप आपको ये सब पता है, इलेक्ट्रॉन है. ये कोई नए वर्ड्स नहीं है, ये तो बताया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट क्या था कि अपन ने मास को कट करके वी केम अक्रॉस नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी. ठीक है. सो दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछते हैं बहुत जरूरी है. आपको पूछा गया अगर डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और आपने लिखा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. स्मॉल थिंग्स, राइट? सो प्रॉपरली यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली. स्मॉल वर्ड्स, राइट? स्मॉल वर्ड्स मेक बिग डिफरेंस. रीडिंग ऑफ क्वेश्चन प्रॉपरली. से मैथ्स में भी ऊपर से नीचे कॉपी करते वक्त गलती से नंबर रॉन्ग हो गया तो पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग होता है कि नहीं? है कि नहीं? सो स्मॉल थिंग्स, प्रॉपरली रीड करो क्वेश्चन को. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछा है, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है. सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इज इक्वली नेसेसरी टू आंसर. क्या पूछा है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछा है तो लॉ ही बताओ, टेबल पूछा है तो टेबल ही बताओ. ठीक है. ये कहीं तो लिखो, यहाँ पे कहीं तो स्क्रिबल करके याद से लिखो, या फिर बुक के स्टार्टिंग में ही लिखो, फर्स्ट पेज पर लिखो कि रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, एंड दिस अप्लाइज फॉर एवरी सब्जेक्ट.
नॉट ओनली केमिस्ट्री, इवन फॉर मैथ्स में तो ये सिली मिस्टेक होते हैं। सब कुछ आता है बट क्या गलत कॉपी किया तो क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी कर लिया, है कि नहीं? तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये ऑलरेडी अपन ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखा था, अभी अपन इसका लॉन्ग फॉर्म देखेंगे। सेम सेम नाम रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, सेम सेम नाम है, अब बोलोगे कंफ्यूज हो गए मैम क्या पूछा था। आपने तो बोला था क्वेश्चन बराबर पढ़ना, बट क्वेश्चन बराबर पढ़ने के बावजूद भी गलत लिख दिया। इसलिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज प्रॉपर नेमिंग। ये कैसे आया क्लासिफिकेशन? पहला तो था ही अपना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के इसमें, इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलेंगे, इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं। सो अभी जो है इस इस पर्टिकुलर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का जो बेसिक एलिमेंट है वो तो मैं आपको बता दिया है, जो कि है कि एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। एंड स्ट्रक्चर कैसा है इसका? तो लॉन्ग फॉर्म में है। लॉन्ग फॉर्म में क्यों है वो हम देखेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर टेबल में एलिमेंट्स को फिट किया गया है। इसके लिए विल कम टू दिस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल विच इज ऑन पेज नंबर 23। आई होप सबने खोला है ये टेबल का पेज, ठीक है। अभी जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 2 पेज का समरी है जो ऊपर 2 पेज पढ़ा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीरीज सेम है, कितने रोज है? 7 रोज जो सेम था उधर। और कितने टेबल्स के एलिमेंट है, कितने कॉलम्स है? सो 8 प्लस दिस पर्टिकुलर 10 एलिमेंट्स हियर, ठीक है। ये 10 एलिमेंट्स है और बाकी के यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 कॉलम्स है, सॉरी कॉलम्स। सो 8 कॉलम्स, ठीक है, ये तो गिन सकते हो आप। एंड हाउ इज दिस पर्टिकुलर रोज फॉर्म इज अगेन 7 मेजर रोज एंड प्लस 1, सो 8 रोज। ये अपना फिलहाल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है गाइस, मैंने अभी जो लास्ट एक डीमेरिट कहा था कि हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ये आज के डेट तक कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए इसको एकदम अलग से प्लेस किया गया है। ये किसी का भी पार्ट नहीं है, मेक श्योर ओके। हाइड्रोजन बोलते ना अपना अलग से सिंगल है, ये किसी के साथ भी मिंगल नहीं हुआ है, ये अलग ही है ना, ये इस ग्रुप का पार्ट है अल्कली, मतलब ही इज द पार्ट, मतलब इसके प्रॉपर्टीज एकदम सेम है बट ही इज नॉट येट एबल टू नो, इसका प्लेसिंग नहीं हुआ, ये अलग ही है। ये इसमें आपका ज्वाइन करके दिया है बट इफ यू विल सी ऑन बिग बोर्ड्स, सो देखना उधर की हाइड्रोजन अलग से ही बनाया है, वेरएज एट द सेम टाइम हीलियम जो है यहाँ का, ये इस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट है, सो ये अटैच्ड है, इसलिए इसके कलर भी मैटर करते हैं। जब ये पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो देखो इसमें कितने टाइप्स ऑफ कलर्स यूज किए, क्योंकि हर एक कलर एक अलग आइडेंटिफाई करता है। जैसे ये पिंक कलर्स है, ठीक है, पिंक कलर अल्कली ग्रुप है। फिर ये जो ग्रुप है इसका सब ऑरेंजिश लाइट ऑरेंज कलर है, तो एक अलग ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहली चीज आप आइडेंटिफाई करो ये है कि एटॉमिक मास में, एटॉमिक नंबर में इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5। सो इससे क्या हो गया, अपना एक जो ड्रॉबैक था कि मास थोड़ा कभी तो कम ज्यादा हो रहा है, तो इसमें ऐसा भी है दैट यू विल बी आइडेंटिफाइंग एंड टेलिंग मी नेक्स्ट टाइम कि मैम यहाँ पे एक जगह पे फिर 2 जगह पे ऐसे एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं जिनके मासेस ज्यादा हो फिर कम है फिर से बढ़ रहे हैं, सो बेसिकली दे आर नॉट ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो ये आपको आइडेंटिफाई करना है नेक्स्ट टाइम की क्लास में, सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। एंड सो फर्स्ट तो हो गया अपना कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास है, एंड ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट हम देख रहे हैं वो कैसा है, देखो यहाँ पे ये बॉक्स जो दिया है ये इसके लिए ही दिया है, रेफरेंस के लिए। ऊपर जो है ये एटॉमिक नंबर है, ठीक ठीक है, सपोज अपन हीलियम लेते तो 2 उसका एटॉमिक नंबर है। सिंबल जो अपन लिखते हैं वो शॉर्ट फॉर्म रहता है उसके पर्टिकुलर नाम को, जैसे He है तो वो हीलियम है सिंबल। एंड फिर आता है नेम, उसके नीचे नेम दिया है, फुल नेम, जब फुल नेम आपका जो रहता है वो, और उसके नीचे है उसका मास कि उसका मास कितना है। सपोज हीलियम का 4.003 है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यू विल फाइंड कि इसमें मास दिया है।
So this is how in modern periodic table a particular element is identified. ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे, ये जो है पूरा एस ब्लॉक बोलते हैं इसको, ये जो है पूरा पी ब्लॉक है, पूरा ये जो साइड है ये अपने डी ब्लॉक है, एलिमेंट्स है, और ये अपना एफ ब्लॉक है। एंड इसमें भी अभी भी जो स्टार और हैशटैग दिया है ये, तो इस पे भी इंक्रीज हो रहे हैं एलिमेंट्स, लाइक न्यू एलिमेंट्स आर गेटिंग फाउंड एंड न्यू एलिमेंट्स आर गेटिंग प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड इन दिस। एक जो ड्रॉबैक और एक ड्रॉबैक था कि हीलियम नियॉन आर्गन को अलग फेंक दिया गया था, अलग ग्रुप ही जीरो ग्रुप बना दिया गया था। तो अभी ही वाज प्रॉपर्ली एबल टू फिट इन दिस पीरियोडिक एलिमेंट, एंड उसके प्रॉपर्टीज भी रिपीट हो रहे थे, लाइक 1 के बाद जो है 2 में रिपीट हो रहे हैं, लाइक ऐसे रिपीट हो रहे हैं उसके एलिमेंट्स पीरियोडिकली। सो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लाइक दिस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल is very much at par with the increasing बोलते हैं ना, increasing coming up of new elements. So it was perfectly getting fit in this. So इतना है, ये पूरा जो है इसके आपको जितना जल्दी आप लर्न कर सकते हो बेटर है, बिकॉज ये सब एलिमेंट्स बहुत काम आते हैं, HHE LI BE BC, आपको जैसे अपने एक्रोनिम में करके फिट इन करना है आपके माइंड में, आप कर सकते हो। कोई लोग ऐसे करते हैं, लीना का सरबारा, कोई बेमक का सरबारा, ऐसा like whatever synonyms or whatever acronyms you want to make in your mind, make them. एंड इसके प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे और डिटेल में कि ये क्यों इधर है, ये क्यों इधर नहीं है। सो दिस विल बी सीइंग नेक्स्ट टाइम, ओके। एंड विद दिस लेट्स कंक्लूड। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज आस्क मी, आई एम देयर, अदरवाइज यू कैन प्लीज साइन आउट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, वेलकम। ma'am. यस, वेलकम। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय, टेक केयर।